Good morning, students. So, in previous part, we discussed about the evolution of towns in India, which we talk about the classification, section about these towns, Indian towns. It may be classified as ancient towns, medieval towns, and modern towns. So now we start from ancient towns. Okay, so what is ancient time? Ancient towns were developed, before 2000 years, and it developed as religious and cultural towns because religious and cultural towns means most of them developed as religious and cultural centers like Varanasi, one of the important towns among these, and Prayag, which is called Allahabad, and Patliputra, Madurai are some other examples of ancient towns in country. Okay, कि ये चीज़ ये जो जगह है ये जो प्लेसेस हैं दे वर वेरी फेमस लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट आगरा ताजमहल जो कि पहले से ही फेमस रहा है काफ़ी ज़्यादा एंड दिल्ली एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बोध गया बिहार बिकॉज हियर बुद्धिज़्म जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था सो ऑल द हिस्टोरिकल लाइक मदुरई पटना वाराणसी वर फेमस इट इज़ these towns are ancient towns. Now next is medieval towns. Medieval towns जो है these towns are in northern plains and इन सेंट्रल रीजन्स ईस्टर्न रीजन्स हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हो गए वेस्टर्न रीजन्स एंड इवन साउदर्न ईस्ट जो एरिया है वहाँ पे भी है जब राजा महाराजा हुआ करते थे एंड तो उन्हें हेड तो उस टाइम के जो जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है उन्हें हेड क्वार्टर्स बना दी गया लाइक दिल्ली हो गया आपका लखनऊ आगरा नागपुर ओके सो नेक्स्ट इज मॉडर्न टाउन सो दे आर डेवलप्ड बाय ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो when they came in our country that time for their trading system because it was not possible to come directly to center area तो ये क्या करते थे कि these are generally located in coastal areas huh? And why because they entered in our country by waterways so instead of going in center regions they started settling in coastal region for trading especially क्योंकि इन्होंने बिजनेस से स्टार्ट करा था हमारे कंट्री में आना देन देवर फोर्ट्स कंस्ट्रक्टेड इन्होंने बहुत सारे फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया बाय यूरोपियंस एंड मैनी मोर प्लेसेस वर दे विच दे डेवलप लाइक कोलकाता चेन्नई मुंबई गोवा एट्सेट्रा सो दीज एरियाज वर नोन एज मॉडर्न सिटी आफ्टर गेटिंग फ्रीडम इन्हीं सिटीज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बना दिया गया बिजनेस टाउन्स बना दिया गया ओके सो यू कैन सी हियर चेन्नई कोलकाता विच वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश स्टाइल और आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत पक्की बिल्डिंग्स हैं नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज urbanization in India. Okay, so here is the table number 4.1. Just keep this study. It is trends of urbanization from 1901 to 2011. So here you can see number of towns, urban population कितनी है, percentage of total population कितनी थी, ठीक है. So you have to study it. Now it's urbanization in India. So here we discuss how in India started urbanization. So the level of urbanization in India in 2011 was 31. How much? 31.16%. Which is quite low in comparison to developed countries because as per the population if we see तो population के according जो है ये percentage जो है बहुत ज़्यादा low है
ठीक है. बट इन 2017 के अकॉर्डिंग इफ़ यू चेक इट, सो इट विल बी डिफरेंट. ओके, ये थोड़ा सा जो है ये इंक्रीज़ हो गया होगा. मीन्स इंक्रीज़ और ज़्यादा बेटर हो सकता है एज पर द पॉपुलेशन. टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी. सो यहाँ पे कह सकते हैं 11 टाइम्स जो है ये ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. इट इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्लान्ड सिटीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी. ऑन द टेबल यू कैन सी 4.1 विच आई ऑलरेडी सेड टू यू टू स्टडी इट. Trends of urbanization in 1901 to 2011. So here you can see number of towns in 2011 कितना है 6171. Then urban population in thousand this much and percentage is 31.16. ओके, ग्रोथ जो यहाँ पे दी गई है 31.0208. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन of towns on the basis of population size. So study table number 4.2. This is the table, and here you can see class wise it has mentioned here. Okay, 1 lakh above population lives in 468 cities. मीन्स कि 1 लाख जो से ऊपर की जो पॉपुलेशन है दे लिव्स इन 468 सिटीज़ में रहते हैं. मीन्स इनमें से 53 सिटीज़. ओके, हाउ मच सिटीज़? 53 सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी 1 लाख एंड अबोव 168 सिटीज़ हैं. एंड टोटल अर्बन पॉपुलेशन दिस मच, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. परसेंटेज ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन इज़ दिस, ये परसेंटेज लिया गया है. आज पर दिस इसमें से जो है 53 जो सिटीज़ हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है. ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा. मेगा सिटी इज़ वेरी लार्ज सिटी typically with a population of more than 10 million people. So these are selected like Delhi. Selected means जैसे कि आपकी जो बहुत बड़े बड़े जो महानगर है आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब पे क्या है आप हाई पॉपुलेशन देख सकते हो. एंड यहाँ पे जो आपकी सेटलमेंट्स भी आप ज़्यादा देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स. अगर फंक्शनल बेस पे अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए, सो some towns or cities specialized in certain functions and they are known for some specific activities, products or services. Like कहीं पे आप specifically वहाँ का प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है वहाँ पे, कि ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट की जा रही, they provide services. Okay, so on the basis of it we can classify it as follows. Like first of all, administrative towns. Administrative towns like national capitals which house the administrative offices of central government like Delhi, Bhopal, Jaipur, Chennai. तो यहाँ पे क्या है, सारे offices वगैरह आप you can see in these area. Next is industrial towns. Industrial towns means trading and commercial towns. Okay, so agricultural market towns होते हैं यहाँ पे. banking and financial centers होंगे यहाँ पे. large inland centers होंगे and transport होगा. तो इनमें से फॉर एग्जांपल लाइक मुंबई, कोयम्बटूर, सलेम, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एट्सेट्रा. सो दीज आर द इंडस्ट्रियल टाउन्स. ओके, ट्रेडिंग एंड commercial towns these are. Next is transport cities. Transport cities they may be ports primarily engaged in export, import and export activities जहाँ से सबसे ज़्यादा होती है. कांडला, कोची, these are the coastal areas especially. Okay, so ये मुगल सराई हो गया,
इतरासी हो गया, काटनी. So these are the areas which is transport cities. Next is commercial cities which I already told you कि agriculture और जो कि आपका ट्रेडिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, सहारनपुर, सतना, कोलकाता. माइनिंग टाउन्स ऑल्सो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है, कोल एंड मिनरल्स, जहाँ से बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइक रानीगंज, झारिया, डिगबोई, अकलेश्वर. ओके, so these are the area, these are the regions which are mining towns. Now garrison and cantonment towns. garrison and cantonment towns में भी आपका क्या आएगा कि लाइक अम्बाला, जालंधर, मऊ, बानिया, ये जो है एक garrison cantonment towns होंगे आपके. So here you can see all the India population of million plus cities, urban agglomeration 2011. We just study this table. Okay. Next is educational towns. So here educational towns, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं स्टडी के लिए जाते हैं, प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं, ठीक है. मेजर जहाँ पे बड़े बड़े कैंपस हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. सो लाइक वाराणसी, अलीगढ़, भिलाई, इलाहाबाद, नाउडेज इन उत्तराखंड जैसे आपका देहरादून हो गया, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स. सो रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स अगर उत्तराखंड में ही देखा जाए तो आपका हरिद्वार हो गया, ठीक है. एंड वाराणसी, प्रयाग, अमृतसर, मदुरई. सो दीज आर द एरिया, पुरी, तिरुपति, ठीक है. सो दीज आर द रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स. नेक्स्ट इज टूरिस्ट टाउन्स. टूरिस्ट टाउन्स जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इनकम के भी सोर्स होते हैं वहाँ के लोकल पीपल के लिए. सो स्पेशली मेडिटेरियन कोस्ट हो गया, वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हो गया. इनके अलावा शिमला, मसूरी, नैनीताल, लद्दाख लोग घूमने के लिए आते हैं. एंड यहाँ पे एक एडवांटेज भी है स्टूडेंट्स, इन फ्यूचर इट कैन बी कन्वर्ट इनटू मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, स्पेशली इन टूरिस्ट एरियाज. Okay, so this chapter is over now, and one more thing is here, smart cities. You have to study this. I'll give you uh, one activity from this portion later on after completing question answer. Okay, so thank you so much, student.